ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಸಸ್ ಗವರ್ನರ್ ನಡುವಿನ ಚಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೇರಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ವಿವಾದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಷಣ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂತ RN ರವಿ ಅವರು. ಅಧಿವೇಶನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಮನವಿಗೂ ಬಗ್ಗದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಪಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಾಸಕರು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸದನದಿಂದನೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿನೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. அலுவலர்களே, ஊடக நண்பர்களே, தமிழக சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். It is my honor to deliver the inaugural address of the Legislative Assembly for the year 2024 in this August House. I extend my warm greetings to everyone for the new year, and I wish that this year brings more happiness, prosperity, and well-being to everyone. I commence my address by recalling the immortal words of Saint Thiruvalluvar, which encapsulate the vision of this government for the state. Pini inmai selvam vilai vinabam emam ani enaba natirka vainda. Absence of disease, plenty in harvest, wealth, general happiness and security. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡದಿರುವಂತ ದುರಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು DMK ಶಾಸಕರು. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಬೀದಿ ಕಾಳಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೊಲ್ಲಂನ ನೀಲಂ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರಿಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ SFI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರಿಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ SFI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾದಂಥ ಹಲ್ಲೆಕೋರರನ್ನ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 2 ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी को संबोधित करने का अवसर मिला। राज्य विधानसभा चुनाव में
के विश्वास से नए सपनों के साथ सत्ता में आई मेरी सरकार अपनी और करनी दोनों में एकजुटता के साथ काम कर रही है। वाणी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे समर्थकों का मत है कि जो वचन दिया गया है उनका पालन करना चाहिए, तभी वचन का मूल्य है। जब कही गई बात को महत्व दिए बिना वादों को कमजोर करने का राजनीतिक माहौल में मेरी सरकार ने एक नई संस्कृति की शुरुआत की है। जैसा कहा था वैसा ही किया है एवं दिए गए वचनों का पालन मेरी सरकार ने जनता के प्यार, विश्वास और उम्मीदों से समझौता किए बिना जो कहा है वो किया है। इसने राज्य के 7 करोड़ लोगों के जीवन में सुख, शांति और संतोष के एक नए युग की शुरुआत करके बदलाव की बयार दी है। आज देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक आर्थिक असमानता को कम कर विकास के पथ पर चलकर आर्थिक रूप से अग्रणी है। विकास का चलकर आर्थिक रूप से अग्रणी है। विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि इसमें सतत विकास और सामाजिक समरसता भी शामिल है। इन बातों के साथ मेरी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कर्नाटक मॉडल का अनुसरण कर रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य इस मॉडल को और मजबूत करना और कर्नाटक राज्य को पूरे देश में अद्वितीय बनाना है। सरकार की 5 गारंटी योजनाओं ने बढ़ती आर्थिक असमानता से पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान की है। इन परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में आवेदन इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक रूप से वंचित लोगों को इन योजनाओं की कितनी आवश्यकता थी। मेरी सरकार इन योजनाओं के पर्याप्त क्रियान्वयन को प्राथमिकता मानकर इसके लिए सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था तैयार की है। हालांकि सरकार को पता है कि ये गारंटी उन लोगों के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है जो आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। जिस विकास में धन कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित हो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मेरी सरकार ने आर्थिक विकास इस प्रकार करने का निर्णय लिया है कि वंचित जनता को समग्र आर्थिक विकास में शामिल किया जाएगा और आर्थिक विकास का फल स्वाभाविक रूप से सभी को उपलब्ध होगा। गारंटी योजनाएं इस संबंध में एक शुरुआत मात्र है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं शक्ति, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और युवा निधि को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया है। मेरी सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं। यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि मेरी सरकार के एक निर्णय से प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे। मेरी सरकार गारंटी योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख रही है। हमारे राज्य में सूखे की स्थिति के बावजूद किसानों की आत्महत्या के मामले पिछले साल से कम हैं। मेरी सरकार इस विश्वास के साथ काम कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से आत्महत्या करना उचित नहीं है। मेरी सरकार एक भविष्योन्मुखी सरकार है। हमारी सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भविष्य में इस राज्य के सभी लोगों के लिए संतुष्टि और शांति लाना है। हमने अपनी नीतियों में नव प्रवर्तन को अपनाया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नई आकांक्षाएं पैदा करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रौद्योगिकी में नए नवाचार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को इन अवसरों को अपनाने और उद्यमिता
विकसित करने के लिए तैयार करने हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक की राज्य शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने की नई संभावनाओं को खोलेगी, जो राज्य द्वारा पहले ही हासिल की गई शैक्षिक प्रगति के साथ वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करने और वक्त के अनुसार जरूरतों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया है। राज्य की शिक्षा नीति इस संबंध में देश को नई दिशा दिखाएगी। जन केंद्रित और विकास समर्थक मेरी सरकार ने अपने गठन के केवल 8 महीने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राष्ट्रकवि श्री कुवेंपु की सर्व जनांगदा शांतिया थोटा की आकांक्षा और राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी सरकार का आदर्श वाक्य है। यह जानकर हमें गर्व है कि इन दोनों मिशनों को इस 8 महीने के प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ये योजनाएं किसी भी जाति, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी मध्यवर्तियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे राज्य के सभी प्रकार के पात्र लोगों तक पहुंच रही है। मेरी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बिना शब्दों में कहे अक्षर से लागू कर रही है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड माना जाता है कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में किसी भ्रम और उलझन के गारंटी योजनाएं लागू की है। देश विदेश की मीडिया ने इसकी सराहना की है। अध्ययन भी किया जा रहा है। इसने सुशासन, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था को अपना मूल मंत्र बनाया है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को न भूलते हुए प्रशासन में आसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अपने में एक क्रांतिकारी कदम है। 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है। शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.